This is our first unit of class 11th and this is our 8th video lecture, and the topic is applications of dimension analysis, and this is third application. Two applications had been discussed in our last videos, so this is final application, deducing relations among the physical quantity. यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशंस को डिड्यूस करना है, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, बाय मेकिंग द यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन की होमोजेनिटी, यानी डायमेंशन को एक समान करके वी कैन ड्राइव, हम एक एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। अगर हमें ये पता हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो हम उन फैक्टर्स से एक फिजिकल इक्वेशन बना के और उसकी डायमेंशन को इक्वल करके हम उसके बीच रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सभी जानते हैं कि देयर इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ फॉर एवरी पार्टिकल, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v and radius r of the circular path. Means let f is depends L की पावर a, v की पावर b, r की पावर c. A, b, c are the constants which have to determine. A, b, c constants है जिनको हमें determine करना है. On removing proportionality sign, we just introduce a constant m की पावर a, v की पावर b and r की पावर c. Okay, it's very simple. Dimension of force. Now, dimension of force. Dimension of force is m l t minus 2, and dimension of m is capital M, v is l t minus 1 and r is l, because r is a distance. Put the dimensions in this equation, means dimensional equation. Dimensional equation m l t minus 2, dimension of f is m l t minus 2 is equal to k, the value of k is 1. Practically m की पावर a, l t minus 1 की पावर b and l की पावर c. Okay, v की पावर b, so l t minus 1 की पावर b, r की पावर c, so l की पावर c. Now compare the powers, compare the dimensions. m l t minus 2 is equal to m की पावर a, l की पावर b plus c and t की पावर minus b. Okay, m की पावर a, l की पावर b plus c and t की पावर minus b. On comparing dimensions, a is equal to 1, b plus c is equal to 1 and minus b is equal to minus 2. Okay, so from here b is equal to 2 and c is equal to 2 plus c is equal to 1, c is equal to minus 1. These are the values a, b and c. Putting all these values in equation first. इन सारी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए. f इज इक्वल टू k 1 हो गया, m की पावर 1, v स्क्वायर and r की पावर 1. So the answer is mv square upon r. This is a well-known relation of centripetal force. So in this way we can deduce a relation among various physical quantities. Okay, let's discuss few more examples. This is our next example, means the velocity of sound waves v through a medium, यानी किसी भी मीडियम में
जो साउंड वेव की वेलोसिटी v है वो एज्यूम की गई है कि वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम d एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी v. So we can write let v is directly proportional to density d and elasticity E. Okay. Now on removing this proportionality sign, a constant k is used, k d की power a e की power b. Now write dimensions of all the terms. It means dimension of v. V it means velocity. Lt minus 1 and dimension of density. Density is equal to mass per unit volume. Mass is m, volume is L cube. So dimension is ml minus q. Okay. Now dimension of modulus of elasticity. E is given as, it is the ratio of stress to strain. Stress और strain का ratio होता है, and stress is given by force per unit area and strain is length upon length. So the dimension of this is 0 and the dimension of this is f upon a. It means mlt minus 2 upon L square and upon 1. Dimension of length upon length, it means L upon L. So the net dimension is m L minus 1 or t minus 2. Okay, m L minus 1 t minus 2. Now अब इन सबकी डायमेंशन आप इस इक्वेशन में रख दीजिए. From equation 1, this will be Lt minus 1 and this will be k, means 1 d m L minus cube की power a and m L minus 1 t minus 2 की power b. t minus 2. Compare the powers. अब आप इनकी पावर कंपेयर कर लीजिए. सॉरी, पहले इनको ऐड करके फाइनल लिखिए. दिस इज m0 एंड t minus 1. दिस इज m a plus b a b and L minus 3a minus b and t minus 2. Okay, m a plus b L minus 3a minus b or t minus 2. Now comparing the powers. A plus b is equal to 0 minus 3a minus b is equal to 1. It means 3a plus b is equal to minus 1 and minus 2b is equal to minus 1. So let's solve this. B is equal to 1 by 2. Put the value of b in this equation. A is equal to minus 1 by 2. Therefore from equation 1 में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए. v is equal to k वैल्यू 1 and d a की पावर minus 1 by 2 e की पावर 1 by 2. So relation is e upon d और we left k as it is. हम k को ऐसे भी छोड़ सकते हैं. Okay, so v is equal to k under root e upon d. तो इस मेथड से आप कोई भी रिलेशन जो आपको लगता है आप उसको ड्राइव कर सकते हैं. क्वेश्चंस भी आते हैं.
तो ये हमारे जो एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो कंप्लीट होता हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स। हमने अभी डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पढ़े, 3 एप्लीकेशंस थे, बट उन 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बाद भी इसमें कुछ लिमिटेशन लेफ्ट रह जाते हैं। तो द टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है। द फर्स्ट वन इज दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट के, यानी ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि वो जो डायमेंशनल कांस्टेंट के है वो कहाँ से आ रहा है या क्या उसकी परफेक्ट वैल्यू है। द सेकंड वन इज इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, यानी इट इज वैलिड ओनली फॉर 3 फिजिकल क्वांटिटी, यानी जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी तभी ये पॉसिबल है। 3 से ज़्यादा 4 या 5 हो गई तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ 2। आपने 2 एग्जांपल डिस्कस किए, दोनों में देखा कि उसमें मल्टीप्लिकेशन ही था या डिवाइडेशन ही आया था, लेकिन जब क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये इक्वेशन है ut + ½ at², हम इसको इससे ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है। The next one, it fails to drive relationship which involves trigonometric, logarithmic and exponential functions. Trigonometric it means tan, sin, logarithmic और e की पावर x, जिसमें ये टर्म आ जाएंगे, उनके लिए भी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना इससे डिफिकल्ट हो जाएगा। और द लास्ट वन इज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर और विद द फिजिकल क्वांटिटी, और कभी कभी हमें ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड करेगी। जैसे आपने पीछे भी देख लिया कि f जो है m, v और r पर डिपेंड कर रही है, तो यही फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे बहुत सारे केसेस में। तो ये सबके लिए एक जनरलाइज एप्लीकेशन नहीं है, बट हाँ ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये इसका यूज हो जाता है। तो दिस इज आवर टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस हैज ओवर। नाउ द लास्ट टॉपिक of this unit will be significant figures and errors, which we'll discuss in next video.